अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू डिस्कस यू टेस्ट पेपर 1 ऑफ फेज 2 फिजिक्स क्लास 10th। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। सो फेज 2 टेस्ट पेपर 1 फिजिक्स क्लास 10th which composed of chapter number 10, 11, 12 and 13. So as you know, the paper consists of two types, objective type and subjective type. So first of all हम discuss करते हैं objective type को, which consists of 12 MCQ and each MCQ carries 1 mark and you have just 15 minutes to solve these MCQ. So the first MCQ is, in SHM, as the mass moves towards extreme position, its speeds, options are A remains the same, B increases, C decreases and D none of these. So in SHM means simple harmonic motion, the mass move towards the extreme position। कि जब mass जो है वो extreme position की तरफ move करता है तो उसकी speed increase करती है, decrease करती है या फिर remains constant रहती है। So मैं डिस्कस किया था कि जब भी हम mass को move करवाते हैं एक खास displacement पर तो उसमें एक force restore हो जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो मैस जो है वो मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन वो मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है टुवर्ड्स द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब जब वो बी की तरफ मूव कर रहा होता है, मींस के एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो मूव कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड वहां पर डिक्रीज हो रही होती है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिक्रीजेस। द सेकंड एमसीक्यू, wave which are required medium for their propagation, options are A mechanical wave, B electromagnetic wave, C light waves and D none of these. So waves जिनको propagation के लिए कोई ना कोई medium required होता है वो होती हैं mechanical waves। clear? जैसे कि for example sound waves, water waves, तो इनको एक medium required है propagation के लिए, that's why इन्हें कहते हैं mechanical waves. So option A is correct. The third MCQ, wave equation is true for, options are A transfer wave, B longitudinal wave and C both A and B and D none of these. So wave equation क्या है, which is V is equals to F lambda. So ये true है transfer wave के लिए भी और longitudinal wave के लिए भी. So we can mark the correct option C, which is both A and B. Clear? The fourth MCQ, the example of longitudinal wave is, options are A sound wave, B light wave, C radio waves and D water waves. So longitudinal wave की example इसमें से क्या है, which is option A is correct, sound waves. Clear? The fifth MCQ, the intensity of sound depends on, options are A time period, B frequency, C amplitude and D none of these. So intensity of sound जो है वो depend करती है amplitude पर, so option C is correct. The sixth MCQ, intensity of rustling leaves, options are A 10 raised to the power minus 9 watt per meter square, B 10 raised to the power minus 10 watt per meter square, C 10 raised to the power minus 11 watt per meter square and D 10 raised to the power minus 12 watt per meter square. So intensity level of sound जो आपने टॉपिक पढ़ा है बुक में, वहीं पर ही साइड पर एक टेबल गिवन है आपको, उसमें कुछ डिफरेंट चीजों की इंटेंसिटीज गिवन है, तो वहां पर उस टेबल में रेस्लिंग ऑफ लीफ की भी इंटेंसिटी गिवन है एंड विच इज 10 raised to the power minus 11 watt per meter square. So option C is correct. The seventh MCQ, a line joining center of curvature and pole spherical mirror is, options radius of curvature, B principal axis, C principal focus and D pole. So वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है पोल के साथ, उस लाइन को हम क्या कहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कि एक स्फेरिकल मिरर है, अब इस मिरर के जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पोल, और स्फेरिकल शेप है इसका जो सेंटर्ड पॉइंट होता है उसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देंगे पोल के साथ तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू,
8th, convex mirror produces images. Options are A, larger than object, B, smaller than object, C, equal to object and D, very large in size. So convex mirror जो है वो image produce करता है हमेशा object के size से smaller, which means option B is correct, smaller than object. 9th MCQ, conditions for total internal reflection are, so options are 2, 3, 4 and 5. तो total internal reflection की जो conditions हैं वो 2 हैं, जिसमें हमने डिस्कस की थी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही हो. क्लियर? सो ये दो कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो फुलफिल होता है. ओके, द 10th MCQ, द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज द, ऑप्शंस आर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B, E direction of electric field and C, both A and B and D, none of these. So, अब फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है बेसिकली वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है. आप जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी बहुत कम होगी. तो जितनी ज्यादा स्पेसिंग होती जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. सो हम कह सकते हैं कि जो लाइन स्पेसिंग है वो शो कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को. So option A is correct. The 11th MCQ, electron volt is the unit of, options are A, potential difference, B, electric energy and C, electric current and D, capacitance. So electron volt जो है ये unit है electric energy का, option B is correct. 12th MCQ, parallel plate capacitor consists of two metal plates separated by, options are A, metal, B, insulator, C, conductor and D, all of these. मेटल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मेटल प्लेट्स हैं वो सेपरेट की जाती हैं बाय एन इंसुलेटर. ओके, इनके दरमियान जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज इंसुलेटर. क्लियर? आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे. सो अब हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ, जो कि कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में होते हैं 3 पार्ट्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस और जिसमें से एक पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं. आपने कोई से 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज करना है कि कौन से बेस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद हैं, तो आपने वो अटेम्प्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स. सो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? अब जैसा कि इसको हम प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं कि आप सेंटर में हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आपने सेंटर में मेन हेडिंग देनी है रेस्टोरिंग फोर्स एंड देन आपने लेफ्ट अलाइन पर आपने सब हेडिंग देनी है डेफिनेशन और आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है. द सेकंड एमसीक्यू, डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता है? चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था. सो अगेन यहां पर भी आप पहले सिंपल रोमन में आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन आपने सेंटर में मेन हेडिंग देनी है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड देन हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन द आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्लियर? द थर्ड वन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जिनको प्रोपेगेट के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसा कि एक्स रेज हैं, ठीक है, लाइट रेज हैं, हीट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. अब जैसा कि इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो आपने मेन हेडिंग पहले देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन आपने सब हेडिंग देनी है लेफ्ट अलाइन पर डेफिनेशन. तो आपको इसको डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद आपने अगेन लेफ्ट लाइन पर सब हेडिंग आपने देनी है एग्जाम्पल्स और आपने फिर फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है. क्लियर? द फोर्थ वन, व्हाट आर ट्रांसफर वेव. तो आपने यहाँ पर ट्रांसफर वेव को जस्ट डिफाइन करना है. सो अगेन हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे ट्रांसफर वेव्स एंड देन साइड पर सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन और आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है. द फिफ्थ वन, डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ. अब जैसा कि यहां पर उसने 2 चीजों की डेफिनेशन पूछी है, क्रस्ट और ट्रफ की. इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सेपरेट डिफाइन भी कर सकते हैं. मींस के पहले आप क्रस्ट को डिफाइन कर लें, देन आप ट्रफ को डिफाइन कर लें, या फिर इसको आप टेबल फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप एक साइड पर क्रस्ट और सिमिलरली इसके पैरेलल साइड पर आप ट्रफ को आप डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर? एंड द सिक्स्थ वन, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स. क्लियर?
सो जस्ट आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी डिफाइन करना है कि वो क्या होती हैं। द सेवंथ वन, व्हाट इज रेजोनेंस? सो रेजोनेंस क्या होती है? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज रेजोनेंस आपने बुक में शायद मे बी रीड ना किया हो, बिकॉज ये एक साइड पैराग्राफ है, साइड जो आपको बॉक्स गिवन होते हैं, ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज रेजोनेंस? तो सेंटर में आपने हेडिंग देनी है रेजोनेंस, देन आपने इसको फर्दर डिफाइन करना है। व्हेन द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द natural frequency of the object and at amplitude of the vibration increases, this phenomena is called resonance. Okay, the eighth one, what is ultrasonics? So ultrasonic क्या होते हैं? जैसे आपने इसको डिफाइन करना है, साउंड की वो फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्ज से हायर होती है, जिसको एक इंसानी जो एयर है, कान जो है वो सुन नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं these sounds are called ultrasonics. Okay, so we can write the answer as कि सेंटर में हम पहले मेन हेडिंग देंगे अल्ट्रासोनिक्स, देन आपने उसको फर्दर डिफाइन करना है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड दीज वेव्स आर इनऑडिबल फॉर ह्यूमंस। क्लियर? सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन यू हैव टू चूज द बेस्ट 5 पार्ट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो। एंड द फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन पिच ऑफ साउंड। तो आपने सिंपली पिच ऑफ साउंड को यहाँ पर डिफाइन करना है, विच इज द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। तो आपने सेंटर में मेन हेडिंग देनी है पिच ऑफ साउंड, देन लेफ्ट लाइन में आपने सब हेडिंग देनी है डेफिनेशन, एंड यू कैन डिफाइन इट एज साउंड बाय व्हिच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द ग्रेव साउंड इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। द सेकंड पार्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं? ऑप्शंस आर the first one, source of sound, B, medium for propagation, and 3, hearing body. Clear? कि आपका साउंड का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, देन साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज कि एक आउटपुट पे कोई ऐसा टारगेट होना चाहिए जो कि साउंड को रिसीव कर रहा हो। क्लियर? सो ये हैं 3 फैक्टर्स साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, एंड द थर्ड वन इज नेम द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। So loudness of sound depend करती है amplitude of the vibrating body, surface area of the vibrating body, and the distance of source from the listener. Clear? The fourth one, write the factors on which frequency of tuning fork depends. So आपने वो factors लिखने हैं जिस पे tuning fork की frequency जो है वो depend करती है। As the frequency of tuning fork depends on the mass of its prongs, the greater the mass, the lower the frequency of vibration, which means the lower the pitch. Clear? सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप इनकी हेडिंग्स किस तरह से बना सकते हैं? लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स, एंड देन आप इसको फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन फर्दर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो डिपेंड किस किस पर करती है। द फिफ्थ पार्ट, डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी आ चुका है, इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, तो सेम एज इट इज आपने इसको फर्दर फिर से डिफाइन करना है। सो इट्स द टेक्निकल टाइप एरर कि पेपर में ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 बार भी आ सकता है, सो दैट्स योर गुड लक। द सिक्स्थ पार्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, एंड देन आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है। इन कन्वेक्स मिरर साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, and virtual and erect image can be formed. Focal length of convex mirror is always negative. Question number 7, write some conditions for regular reflection. So regular reflections के लिए conditions क्या क्या होनी चाहिए? आपका जो plane है जिस पर light rays fall कर रही हैं वो basically बिल्कुल smooth होनी चाहिए, उस पर कोई pits and bumps ना हो, because pits and bumps होंगे तो आपकी reflection जो है वो irregular हो जाती है। Okay? सो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, कंडीशंस फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, देन आपने कंडीशन बतानी है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी फ्लैट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ लाइट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल स्पेस। क्लियर? द 8th पार्ट, डिफाइन रियल फोकस। तो रियल फोकस क्या होता है? इन कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस पॉइंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रियल फोकस। ओके, जिसमें लाइट रेज जो है वो एक्चुअली एक खास पॉइंट से पास करती हैं, देन हम उसे कहेंगे कि वो रियल फोकस है। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4,
attempt any 5 parts from the following. Again, you have to choose the best 5 parts जो कि आपको बहुत अच्छे से याद है. And the first part is how light can reflect by spherical mirrors. Light जो है वो किस तरह से reflect करती है. So यहाँ पर हम heading देंगे light reflected by spherical mirrors. So answer लिखते हैं इसका. Spherical mirrors reflect the light same as light reflected by a plain glass. Strip mirror will stop the laws of reflection are as follows. The first one, incident ray, refracted ray, normal all lie on a same point. Second one, angle of incidence always equals to the angle of reflection. Clear? So ये वो दो conditions हैं जिनके according जो है वो light reflect करती है. Now here is the point. अब ये क्वेश्चन जो है ये देखने में बहुत डिफिकल्ट सा है. क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है. बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो ये सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है. अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप उसको इजीली स्टेट कर सकते थे, लेकिन यहां पर उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए. ओके, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना. क्वेश्चन जो है वो वही होता है, लेकिन उसको टेक्निकली आप डिफरेंट तरीके से आप पूछ सकते हैं. सो फोकस करना है क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने इसका बहुत इजीली इसका आंसर करना है. क्लियर? द सेकंड पार्ट, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है. सिंपल, इसकी डेफिनेशन आपने बुक से याद की होगी. आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन साइड पर लेफ्ट लाइन पर सब हेडिंग आप देंगे डेफिनेशन, और आपने जैसे इसको डिफाइन करना है. द थर्ड वन, स्टेट कूलम्स लॉ. सो अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी किसी लॉ की बात आ जाए तो लॉ की डेफिनेशन नहीं होती, उसकी हमेशा स्टेटमेंट होती है. तो आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे कूलम्स लॉ, एंड देन आप लेफ्ट लाइन पर सब हेडिंग देंगे स्टेटमेंट, एंड देन आपने उसको स्टेट करना है. द फोर्थ वन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जस्ट आपने इसको डिफाइन करना है. सेंटर में आप मेन हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन द सब हेडिंग इज डेफिनेशन, एंड देन आप इसको डिफाइन करेंगे. देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड is defined as the potential energy of a unit positive charge placed at that point. Clear? The fifth one, define electric charge. So अपने electric charge को define करना है. So simply electric charge के आप main heading देंगे center में, then आप sub heading देंगे left line पर definition, and the two particular bodies are rubbed together and come towards each other. They start attracting or repelling each other due to the charge called electric charge. Clear? The sixth one, in what direction will a positively charged particle move in an electricity? So एक पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी में किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है. सो इस क्वेश्चन की आप हेडिंग इस तरह से बना सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ओके, एंड देन आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. इन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The electric field intensity is in the direction of line of force, so we can see that positively charged particle moves in the direction of electric field lines of force. Clear? The seventh one, what is variable capacitor? Means कि वो capacitor जिसको आप change कर सकते हैं. So आपने जस्ट इसको यहाँ पर define करना है कि variable capacitor क्या होता है. आप center में main heading देंगे variable capacitor, and then आप side पर sub heading देंगे इसकी definition, and then आप variable capacitor को इस तरह से define कर सकते हैं. Clear? The eighth one, write two characteristics of series combinations of capacitor. तो आपने series combination की कोई सी दो characteristic लिखनी है, जैसे कि it provides one path for the flow of current, same charging current through each capacitor, and different potential difference across each capacitor. तो यहाँ पे 3 characteristics मैंने mention कर दी हैं, आप कोई सी भी दो आप लिख सकते हैं. Clear? So I hope कि part 1 आपको clear हो गया होगा. So now we shall move towards the part 2. Part 2 is attempt any 2 questions. Remember, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपने कुछ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. अब जिस क्वेश्चन का आप पार्ट ए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपको पार्ट बी भी उसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होगा. बिकॉज अगर आप पार्ट बी किसी और क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको उस पार्ट बी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ पार्ट ए के मार्क्स मिलेंगे. सो मेक श्योर आप जिस क्वेश्चन का भी पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने पार्ट बी भी उसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है. क्लियर? So the first part, question number 5a, what is simple harmonic motion and explain the motion of mass attached to a spring. तो आपने simple harmonic motion को first of all define करना है. जैसे कि आप left line पर main heading देंगे simple harmonic motion, then आप उसको further define करेंगे, and then
आपने लेफ्ट लाइन पर ही हेडिंग देनी है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, एंड देन आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसा कि इसमें फर्दर डेफिनेशन आ जाती हैं हुक्स लॉ, तो आप हेडिंग देंगे हुक्स लॉ की, आप हुक्स लॉ को स्टेट करेंगे, एंड देन डेफिनेशन आ जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट, आप हेडिंग देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको फर्दर डिफाइन करेंगे। देन डेफिनेशन आ जाती है रिस्टोरिंग फोर्स, तो आप हेडिंग देंगे रिस्टोरिंग फोर्स, उसको फर्दर डिफाइन करेंगे, एंड देन आपने इसको थॉरोली इस तरह से इसको आपने एक्सप्लेन करते जाना है, और मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग को आपने थॉरोली एक्सप्लेन करना है विद इट्स टाइम पीरियड। ओके, इसका हम टाइम पीरियड भी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। द पार्ट बी, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? So अब यहां पर हमें एक पेंडुलम की लेंथ गिवन है which is 0.99 मीटर, हमें उसका टाइम पीरियड भी गिवन है which is 4.9 सेकेंड। तो आपने वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे t is equals to 2 pi under root l over g। आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करना है और आप इजीली g का आंसर निकाल सकते हैं which is 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट रिमेंबर कि न्यूमेरिकल में आपने लास्ट में रिजल्ट भी मेंशन करना होता है। सो वैल्यू ऑफ g ऑन मून, g is equals to 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, राइट अ नोट ऑन अल्ट्रासाउंड एंड देयर यूजेस। तो आपने अल्ट्रासाउंड पर नोट लिखना है और आपने इसके यूजेस भी मेंशन करने हैं। सो अल्ट्रासाउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करेंगे, एंड देन डिफाइन करने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स देकर आपने इसके यूजेस भी मेंशन करने हैं। सो अब बुक में उसने पॉइंट्स की फॉर्म में यूजेस उसने मेंशन कर दिए हैं। सो आप उन पॉइंट्स की हेडिंग्स बना सकते हैं किस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस, रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, सर्चिंग ऑफ ऑयल एंड गैस, फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। क्लियर? Part B, if at Anarkali Bazaar, Lahore, the sound level is 80 dB, 80 decibel, what will be the intensity level of sound? अब sound level आपको यहाँ पर given है, which is L minus L naught, that is equals to 80 decibel, और जो faintest audible sound होता है, जिसकी intensity आपको पता है, I is equals to 10 raised to the power minus 12 watt per meter square, और आपने intensity of sound I आपने find out करना है। So by using formula L minus L naught 10 log I over I naught, सो आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करना है, एंड देन आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी I is equal to 10 raised to the power minus 4 watt per meter square। क्लियर? सो आई होप यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप इसको इजीली इसका सोल्यूशन जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। क्लियर? नाउ द Question number 7, part A, write a note on total internal reflection and drive a relation between critical angle and refractive index। तो आपने total internal reflection पर आपने नोट लिखना है और आपने रिलेशनशिप भी ड्राइव करना है कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशनशिप है, which is basically sin I over sin R is equal to C। ठीक है, जो कि हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, N is equals to sin I over sin R। तो ये क्रिटिकल एंगल का फिर इसका रिलेशनशिप किस तरह से हो सकता है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका बेसिकली इंसिडेंस एंगल होता है, और उस क्रिटिकल एंगल पर आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। दैट मीन कि हम R जो है वो हम पुट करेंगे 90 डिग्री और I की जगह आप पुट कर देंगे C, विच मीन्स क्रिटिकल एंगल। सो फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो sin 90 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 के। दिस इज स्नेल्स लॉ। सो अब क्योंकि जो इंसिडेंस एंगल है वो है आपका क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब sin 90 जो है ये 1 हो जाएगा। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि sin 90 जो है ये 1 के इक्वल होता है। सो जब इसकी जगह आप 1 प्लेस करेंगे सो n इज इक्वल्स टू sin एंगल C। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन। पार्ट बी, capacitor holds 0.06 coulomb
of charge when fully charged by a 9-volt battery. Calculate the capacitance of the capacitor. So अब यहाँ पर आपको कैपेसिटर का चार्ज भी गिवन है which is 0.06 कूलम और वोल्टेज भी गिवन है जो कि 9 वोल्ट. तो आपने जस्ट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला C is equals to Q over V. इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर आ जाएगा 6.67 into 10⁻³ farad. Clear? So this is the capacitance of the capacitor. So I hope ये टेस्ट पेपर 1 जो कि फर्स्ट हाफ बुक है ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.